કિંજલબેન 8 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ જોઈન્ટ થયા છે એની અંદરમાં આપણે. યસ. તો કેન વી સ્ટાર્ટ કરી દેવું છે? હા હા કરી દઈએ. Good evening to all of you. Welcome to Niranjan sir. Yes sir. આપણે ખાસ કરીને ડિઝાઇનિંગ અને ફેશન ડિઝાઇનિંગ અને આર્કિટેક્ચરની અંદરમાં જે વિદ્યાર્થીઓ પોતાની કારકિર્દી બનાવવા માંગતા હોય અને એના સંદર્ભની અંદરમાં આપણે આજે ઇન્ટરનેશનલ મેયર સુપ્રીમ કાઉન્સિલ અને નિરંજન સરના માધ્યમથી આપણે એક ઓનલાઈન સેમિનાર વેબિનાર રાખ્યો છે. એમાં જે જોડાયેલા વિદ્યાર્થીઓ છે સૌનું સ્વાગત છે આની અંદરમાં. આ કાર્યક્રમની પરિરૂપ જે આપી છે કિંજલબેન ઓડેદરા અમદાવાદથી છે, એમને આપી છે. પોતે આર્ટ ટીચર છે અને આ ક્ષેત્રમાં બહુ મોટું એવું કાર્ય કરે છે એની અંદરમાં. અને ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓની અંદરમાં આર્ટ્સની સ્કિલ હોય પણ એને ખ્યાલ નથી હોતો કે આર્ટની સ્કિલનો ઉપયોગ એ પોતાના ફ્યુચર કેરિયર માટે કેવી રીતે કરી શકે અને એની અંદરમાં કેટલા બધા સ્કોપ છે. તો એ સ્કોપ ક્યાં ક્યાં છે, એની અંદરમાં પોતાનું કેરિયર કઈ કઈ રીતે બનાવી શકે એના સંદર્ભમાં આજનો આ માર્ગદર્શન કેમ્પ છે આપણે રાખવામાં આવેલું છે. તો સૌથી પહેલા હું કિંજલબેન ઓડેદરાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આ કેમ્પની જે શરૂઆત છે એની અંદરની ભૂમિકા બાંધે અને ત્યારબાદ આપણે નિરંજન સર પાસેથી આની અંદરનું મહત્વનું માર્ગદર્શન મેળવીએ. કિંજલબેન. નમસ્તે, સીતારામ ડાયરાને બધાને. સૌપ્રથમ તો થેન્ક યુ આઈએમસી મેયર સુપ્રીમ કાઉન્સિલ કે જેને મને આ તક આપી છે કે આપણી જ્ઞાતિના સ્ટુડન્ટને આ ફિલ્ડમાં આવવું હોય તો એને એક માર્ગદર્શન રૂપે હું ક્યાંક પ્રેરણા બની શકું. અને આમાં સપોર્ટ કરવા માટે નિરંજન સરનો આભાર કે એ મારી જે આમાં હેલ્પ કરી રહ્યા છે. ઘણી વખત એવું બને કે આપણા સપનાઓ કંઈક અલગ હોય છે અને આપણે કંઈક અલગ ફિલ્ડમાં જતા રહીએ છીએ. તો મારું એ કહેવું છે દરેક સ્ટુડન્ટને કે તમને જે સપનાઓ છે એ સપનાઓ સાકાર કરવા માટે તમને જે ફિલ્ડ પસંદ છે એ જ ફિલ્ડમાં જાઓ. તો આગળનો કાર્યક્રમ આપણે ચાલુ કરીએ એ પહેલા હું તમને એક શોર્ટ લાઈન કહીશ કે જેમ કે આપણું આઈએમસી ઇન્ટરનેશનલ મેયર સુપ્રીમ કાઉન્સિલ કે જેનું ફૂલ ફોર્મ છે મેયર સુપ્રીમ કાઉન્સિલ, ઇન્ટરનેશનલ મેયર સુપ્રીમ કાઉન્સિલ, અને આપણે એને આઈએમસી તરીકે ઓળખીએ છીએ. એવી રીતે બીઆરડીએસ એ અમદાવાદની અંદર એક ડિઝાઇન સ્ટુડિયો છે. એનું ફૂલ ફોર્મ છે ભવર રાઠોડ ડિઝાઇન સ્ટુડિયો. તો ડિઝાઇનિંગ ક્ષેત્રની અંદર અલગ અલગ ફેકલ્ટી આવે છે. એનું આગળનું માર્ગદર્શન છે એ તમને નિરંજન સર આપશે. Thank you, Kinjal madam. Thank you very much. So, very good evening and very warm welcome to all dear members of the International Maher Supreme Council. As introduced by Kinjal madam, I am Niranjan Pradhan, hosting you today's webinar regarding career in design and architecture. I am representing Bhavar Rathod Design Studio, popularly known as BRDS, जो करियर इन डिजाइन एंड आर्किटेक्चर से लगती एग्जामिनेशंस और डिजाइनिंग फील्ड में आपको कौन कौन से कॉलेजेस की एंट्रेंस एग्जाम होती है उसमें हम उसका कोचिंग देते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि डिजाइन के बारे में आज हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं ये किंजल मैडम का थैंक्स देना चाहूंगा कि उन्होंने अथक प्रयास करके द इंटरनेशनल मेयर काउंसिल के से बात करके, क्योंकि हम एक बार हम ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे वेबिनार सेमिनार्स होते हैं तो एक स्कूल है आईडीपी अहमदाबाद के अंदर, तो वहां पे हमने एक रेडियो माय एफएम के साथ मिलके एक बहुत बड़ा एक्टिविटी किया था। तो वहां पे ड्राइंग कंपटीशन किया था और जब हमने ये मोटिवेशन मैडम ने देखा कि मोटिवेशन है बच्चों के लिए तो उन्होंने हमसे बोला कि आप भी एक कुछ ऐसा करियर वेबिनार हमारे कास्ट के लिए मेहर जाति के लिए करें। तो हम स्पेशली आज ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम स्कूल कॉलेज और हट के आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल सेमिनार इसको देखें। ये
जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये वेबिनार बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आपको नॉलेज मिलेगी इसमें, और एटलीस्ट इसमें नुकसान नहीं होगा, इसमें आपका फायदा ही होगा, थिंकिंग पैटर्न आपका चेंज हो जाएगा। तो वंस अगेन थैंक यू किंजल मैडम फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विथ यू एंड योर मेंबर्स ऑफ दिस IMS Supreme Council. So thank you very much. So let us start, let us proceed. So BRDS welcomes you for a design and career architecture webinar. फ्लो चार्ट ऑफ टुडेज वेबिनार। आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कि चूजिंग द राइट करियर, क्योंकि अभी हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं और पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हाउसवाइफ भी हो सकती है, ऑल एज ग्रुप के लोग हो सकते हैं। हम उसी हिसाब से हम बात करेंगे कि कभी भी देर नहीं हुई है आप करियर में अगर कहीं और है, जैसे किंजल मैडम ने बताया कि कई बार ऐसा हो जाता है कि रिग्रेट होता है कि काश मैंने ये वाला फील्ड उस समय चुना होता तो आज मेरा लाइफ कुछ और होता। तो आप कभी भी अपने यहाँ एक बहुत फ्लेक्सिबल है, तो कभी भी आप आपके इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड वाली जो लाइन है वो चूज कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि चूजिंग द राइट करियर की, करियर को कैसे चूज करें। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे डिजाइनिंग की, तो पहले तो उनको पता होना चाहिए कि डिजाइन होता क्या है, एक्चुअली डिजाइन क्या है, डिजाइन का करियर में क्या इंपॉर्टेंस होगा, इसका कैसा करियर बना सकते हैं, इसका स्कोप क्या है। एक्चुअली अगर हम सब जानना चाह रहे हैं तो फिर ये भी है कि भाई हमने अगर डिजाइनिंग करियर चूज किया और तो उसमें स्कोप क्या मिलेगा हमको, इसके कोर्सेज कौन से होते हैं हमारे लिए, इसमें लगता क्या है, कंसेप्ट क्या है, डिजाइन का कंसेप्ट क्या है, डिजाइन की थिंकिंग क्या है, उस बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। हम बात करेंगे कि उसके डिजाइनिंग के कॉलेजेस कौन से हैं, कि जैसे NID है या NIFT है या USEED है, तो ये कौन से कॉलेजेस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे कि उनकी एंट्रेंस एग्जाम होती है। डिजाइन के बारे में बात करने के बाद हम बात करेंगे, अगर आपको लगता है कि मुझे डिजाइनिंग करना, तो थोड़ी बात हम करेंगे BRDS क्या कराता है और उसका करियर गाइडेंस क्या है। तो शुरुआत यहाँ से होती है कि चूजिंग द राइट करियर। तो हमको ऐसा लगता है कि हर चाइल्ड एक जो होता है वो करियर उसको वही चूज करना चाहिए कि जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज में, तो वो चीज आपको कभी भी अच्छी और सक्सेसफुल होने ही नहीं वाली है। तो नथिंग इज इंटरेस्टेड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। तो सबसे पहले तो यही देखना पड़ेगा कि आपका उसमें इंटरेस्ट कितना है, क्या है, फिर आपकी पर्सनैलिटी से मैच होते हुए आपका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज है, उस पर मैं चाहूंगा आप सभी लोगों को कि फोकस करें, थोड़ा सा अपने आप में देखें कि आपका एप्टीट्यूड क्या है। एप्टीट्यूड क्या होता है, एक नेचुरल टैलेंट है, एप्टीट्यूड एक नेचुरल स्किल है, एप्टीट्यूड एक ऐसी गॉड गिवन चीज है कि जो इंडिविजुअल में अलग अलग होती है, सब में अलग अलग एप्टीट्यूड होता है। मतलब आपने देखा होगा कि जो काम आप लोग आप कर सकते हो, अगर पर्टिकुलर एक बात पर है तो जो काम आप कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता है, कोई और जो कर रहा है वो आप नहीं कर सकते हो। तो सबका एप्टीट्यूड यानी कि जो नेचुरल एबिलिटी की कोई चीज आप बहुत आसानी से कर सकते हो, किसी को ड्राइंग बहुत आसानी से आ जाती है, किसी को मैकेनिकल दिमाग दौड़ता है, तो ये क्या है, ये गॉड गिफ्टेड चीज है। वो अगर आपको पता लगते रहता है कि ये मेरा एप्टीट्यूड है, और उसी हिसाब से दुनिया में जो भी सक्सेसफुल लोग देखेंगे ना आप, वो लोगों ने अपने एप्टीट्यूड यानी कि उनकी जो नेचुरल एबिलिटी थी उस पर जब काम किया, उसी के हिसाब से उन्होंने करियर चूज किया हुआ है। चाहे वो अमिताभ बच्चन साहब हो बॉलीवुड में, चाहे विराट कोहली क्रिकेट खेल रहे हो या सिंगर हो, हर जो जना सक्सेसफुल दिखेगा ना, आप सक्सेस के पीछे मत भागो, आप ये देखो कि आपको क्या अच्छा लगता है और उसको आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। जो चीज आप में है टैलेंट, उसके ऊपर मैं फोकस करने के लिए बोल रहा हूं। तो वो कई बार आपको पता नहीं रहता है कि मेरा एप्टीट्यूड क्या है, मेरा टैलेंट क्या है, क्योंकि दुनिया में 730 करोड़ जैसे लोग होंगे, सबके थंब इंप्रेशन अलग अलग है, सबके थंब इंप्रेशन अलग है। मतलब एवरी इंडिविजुअल, गॉड ने कॉपी किया नहीं है किसी को, गॉड ने सबको एक इंडिविजुअल बनाया है। तो क्यों किसी से कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, कि क्योंकि आपको पता ही है कि आप आपके, क्योंकि कोई आपके जैसा नहीं हो सकता है, आपकी कंपटीशन सिर्फ आपसे है, किसी भी एज ग्रुप में हो। तो आप आपके भाई जैसे नहीं हो सकते हो, बहन जैसे नहीं हो सकते हो, कोई नेबर जैसे नहीं हो सकते, कोई रिलेटिव जैसे नहीं हो सकते हो। तो आप हो, और आप फोकस करो कि मुझे क्या करना है और मुझमें क्या वो क्वालिटी है जो मैं कर सकता हूं या कर सकती हूँ, वो क्वालिटी ही तो पता करनी है। तो वो आपको सबसे अच्छे तरीके से तो आपके रिस्पेक्टेड जो पेरेंट्स होते हैं, मदर फादर, वो बता सकते हैं कि भाई आप में ये वाला गुण है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स बहुत अच्छे से पता कर सकेंगे, क्योंकि वो बच्चा, उनको पता है कि इसमें ये वाला है, उसी हिसाब से अगर सब्जेक्ट करियर चूज करें तो जीवन में सक्सेस मिलेगी। फ्यूचर में रिग्रेट नहीं रहेगा कि काश मैंने ये कोर्स किया होता।
अगर पेरेंट्स नहीं बता पा रहे हैं, किसी कारण से कुछ कंफ्यूजन है, तो रिस्पेक्टेड जो आपके किंजल मैडम जैसे टीचर्स होते हैं, किंजल मैडम के अंडर में जो बच्चे आएंगे उनको पता रहेगा कि इसको यह ड्राइंग नहीं करना चाहिए, इसको ड्राइंग करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, वो टीचर बता सकते हैं कि इसमें वो चीज है, तो वो रिस्पेक्टेड टीचर्स आपको बता सकते हैं। और नहीं वहां से भी अगर कुछ बात बन पा रही है तो आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है हमारे पास, तो एक डिजाइनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो हम हमारे से आप बात कीजिए, एंजल मैडम से बात कीजिए, वो एप्टीट्यूड टेस्ट देके आपको पता लग सकता है कि आपका जो एप्टीट्यूड है, यानी कि जो नेचुरल एबिलिटी है वो डिजाइनिंग में है या नहीं है। तो इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड, अपॉर्चुनिटी, होप आपको समझ में आई होंगी मेरी बातें, कि आपको जो अच्छा लगे, जो काम आपको करने में इंटरेस्ट हो, वो काम जो आप आसानी से कर सक रहे हो, उसी काम को अगर आप कर रहे हो तो सक्सेस बिल्कुल मिलेगी। मनी विल बी अ बाय प्रोडक्ट, पैसे के पीछे तो देखो ही मत। तो इन शॉर्ट आपको इस ढंग से लॉजिकल वे में अगर आपने करियर चूज किया है, अभी भी देर नहीं हुई है, तो आप कर सकते हैं। अगली जो हम स्लाइड दिखाए हैं इसमें हमने बात की कि व्हाट इज डिजाइन। अगर हम बात कर रहे हैं कि डिजाइन की, तो डिजाइन है क्या, व्हाट इज डिजाइन? तो डिजाइन, ये सब इंग्लिश में इतना सब लिखा हुआ है, उसको मैं ऐसा एक समझाने की कोशिश करता हूं कि डिजाइन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग्स। डिजाइन क्या है? इंसानों को दी हुई एक प्रवृत्ति है, एक कला है, गॉड ने दी हुई है इंसानों को वो कला कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। डिजाइन क्या है? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी है आपको, और बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा। सब समझते हैं कि डिजाइन मतलब क्या है कि कोई चीज को बहुत खूबसूरत बना देना, पर खूबसूरत बना के उसका अगर यूज अच्छे से नहीं हो पाएगा तो वो खूबसूरती किसी काम की नहीं। तो डिजाइन क्या हो रहा है? एक ऐसी कला है, एक ऐसी आर्ट है, ऐसी क्रिएटिविटी भगवान ने दी हुई है जो इंसानों की तरफ दी हुई है। उनको क्या बताया गया है कि आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई करके बेस्ट सॉल्यूशन देना है। बेस्ट सॉल्यूशन, मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, आपको समझ में आएगी मेरी बात कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो डिजाइन एक सॉल्यूशन देने के लिए एक तरीका है कि जिससे हम एक सॉल्यूशन देके मैनकाइंड में हम बताएं। तो डिजाइन क्या हो रहा है? स्टेप वाइज हो रहा है। डिजाइन क्या हो रहा है? 5 स्टेप में होता है। ड्राइंग आप सिर्फ बनाते हो, डिजाइन 1 2 3 4 5 स्टेप में होता है। डिजाइन मैंने जैसे बताया किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो डिजाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग है। डिजाइन क्या है? डिजाइन किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, कि डिजाइन बनाई तो एक अपॉर्चुनिटी है, उसको ग्रैब करो कि मौका मिला है। मैनकाइंड में है बेनिफिट ऑफ ह्यूमन, हमारे समाज को बेनिफिट हो, वो एक डिजाइनर का काम है। अब मैं ऐसी बात करता हूं कि आप इतने अच्छी कास्ट के जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, इंटरनेशनल मेयर सुप्रीम काउंसिल, ये इसके आप मेंबर्स हैं, और कास्ट में हैं, पोरबंदर में हैं, और सब जगह फैले हुए हैं। तो आपको भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से ऐसा सोचना चाहिए कि मैंने तो जन्म ले लिया, अच्छे पेरेंट्स मिले, अच्छा स्कूल मिला, अच्छा देश मिला, बाहर मिला, सब मिला, मैं क्या दे सकता हूँ? देने की प्रवृत्ति, दुनिया को मैं क्या दे सकता हूँ? तो अब जैसे किसी ने अगर रिवर फ्रंट बनाया हुआ है तो वो तो जिंदगी भर यूज नहीं करने वाले हैं, लेकिन सालों साल तक वो रिवर फ्रंट आपको यूजफुल होगा। एक जरा सा मैंने एग्जांपल दिया, तो जिन लोगों ने डिजाइन बनाई हैं वो लोग अमर हो गए हैं। इन शॉर्ट, डिजाइनर का वैल्यू देखो, और बीइंग क्रिएटिविटी, पैसा तो मिलने वाला है, लेकिन आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने लोगों के लिए किया। जैसे आप कोई खाना बनाने में मदर है, माँ है, वो माँ को कैसा सुख मिलता है, उसने खाना बनाया और किसी को खिलाया, और खाने के बाद लोगों ने उसकी तारीफ की। तो बस वही है कि कोई ब्रिज बना रहा है, कोई कपड़े ड्रेस बना रहा है, कोई क्या है, वो डिजाइन के बारे में हम बात करेंगे। इन शॉर्ट, डिजाइन इज पर्पसफुल। अब आप बोलोगे कि डिजाइन पर्पसफुल है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, अगर आप कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा तो मैं आपको बताता हूं कि अगर हम बात करते हैं डिजाइन पर्पसफुल है, तो समझिए कि आपके सामने ये लिविंग रूम है। ये टॉप मोस्ट करियर क्यों है डिजाइन? क्योंकि एवरीवेयर अराउंड अस इज अ डिजाइन। आपके सामने एक लिविंग रूम का एक पिक्चर आया हुआ है, यहाँ पे एक बेडशीट है, डबल बेड है, या कुछ सीनरी लगी हुई है, कर्टन्स है, चेयर है, ये टेबल है, ये सब चीजें डिजाइन की हुई है। तो इस सबका एक पर्पस है, और इसका एक किसी कारणवश ये चीज बनी हुई है। मतलब खाली कंफर्ट जोन के लिए तो नहीं है, साथ ही साथ आराम, कंफर्ट के साथ साथ एक प्रॉपर उसका जो है वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब मान लीजिए कि चेयर है, और हमने बोला कि भाई चेयर पर्पसफुल है,
चेयर तो बैठने के काम आती है, चेयर पर्पस तो बन गया है, बैठना है हमको चेयर पे, तो चेयर पे बैठने का पर्पस है, इसलिए चेयर बनी हुई है। तो जब बैठने का पर्पस इस चेयर से सॉल्व हो रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? अब मैं आपको बताता हूं कि अगर यही वाली चेयर मैं अगर किसी डेंटिस्ट के यहाँ पे रख दूंगा तो डेंटिस्ट को उसका उस चेयर पर बिठा के कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपने कभी डेंटिस्ट के यहाँ गए होंगे पेरेंट्स के साथ या खुद भी देखा होगा, तो डेंटिस्ट का जो प्रोसेस है चेयर पे बिठाने का वो एक अलग होता है। तो डेंटिस्ट के यहाँ अगर ये चेयर रखेंगे काम नहीं आएगी, यही चेयर किसी कंप्यूटर टेबल कंप्यूटर लैब में देखेंगे तो काम नहीं आएगी, एयरपोर्ट लॉन्च पे काम नहीं आएगी या रेस्टोरेंट में काम नहीं आएगी। तो हर जगह पे जो अरेंजमेंट है सिटिंग अरेंजमेंट में, तो एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, तो हर जगह बैठना तो पर्पस है, लेकिन अब एक चाय वाले के यहाँ अगर आप लग्जरी चेयर बना के डिजाइन कर दोगे तो लोग घंटों तक बैठेंगे, उसका पर्पस है चाय बेचना। तो डिजाइन एक पर्पसफुल है, तो वो चाय एक अनकंफर्टेबल सा वो मुद्दा रखता है और चाय आप देखें कि ये चेयर का पर्पस यहाँ लिविंग रूम में के और बैठने के लिए है। डेंटिस्ट के यहाँ की चेयर अलग होगी, एयरपोर्ट पे अलग होगी, कोई होटल में, वेडिंग चेयर्स अलग होते हैं। आप समझे कि अलग हटके डिजाइन एक पर्पसफुल है, डिजाइन एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए है, डिजाइन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो फिर बात यही आती है कि डिजाइन कंसेप्ट क्या है, डिजाइनर करता क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये कि डिजाइनर क्या करता है, 5 स्टेप में मैंने डिजाइन क्या होता है, एक एक्सप्रेशन है कि मुझे जो अच्छा लगता है वो मैंने बनाया। डिजाइन एक प्रोसेस है, 5 स्टेप में प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जर्व करने का कि क्या अवेलेबल है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि 20 25 30 साल पहले मोबाइल अवेलेबल था, पर ऐसा मोबाइल था क्या एंड्रॉइड टाइप का? ऐसा मोबाइल नहीं था। इसका क्या मतलब हो रहा है कि कहीं ना कहीं डिजाइन जो है वो इम्प्रूवमेंट रोज हो रहा है, कुछ ना कुछ रोज हो रहा है। आज जो मोबाइल है वो कल भी नहीं रहने वाला है, बराबर। हो सकता है फ्यूचर मोबाइल में आपको कैरी नहीं करना पड़े, मोबाइल बॉडी में ही चिप लग जाए या कुछ हाईटेक चीजें हो जाए, उस पर काम चल रहा है, जल्दी हो जाएगा। 20 25 और पहले क्या हो रहा था कि धीरे 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 चेंजेस आ रहे थे। अभी आपने नोटिस किया होगा कि हर 2-3 साल में सब चेंजेस आ जाते हैं, हर साल पैटर्न चेंज हो जाते हैं। इसका क्या मतलब हो रहा है कि दुनिया फास्ट चल रही है और डिजाइनर्स भी उसी हिसाब से काम दे रहे हैं और काम कर रहे हैं, इसीलिए ये टॉप मोस्ट करियर है। हम बात कर रहे थे कि डिजाइन कंसेप्ट में, तो ये मोबाइल जो है 25 साल पहले ऐसा नहीं था, तो इसमें क्या प्रॉब्लम देखी होगी किसी ने, डिजाइनर ने तभी भी तो ये सोचा कि इसको कैरी करना मुश्किल है, यहाँ से एक जगह से उठाना, क्योंकि बहुत बड़ा मोबाइल होता था, बटन्स उसमें प्रॉब्लम्स दे रहे थे। तो बोले कि कोई हल्का मटेरियल, ऐसा लाइट वेट मटेरियल यूज करें। और ये तो एंड्रॉइड फोन आ गए, टच स्क्रीन आ गया, ये आया। अब आपको बताएं कि सबसे पहले डिजाइनर क्या कर रहा है, व्हाट इज अवेलेबल, तो मोबाइल इज अवेलेबल। व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट एम्फसाइज करना, व्हाट इज द नीड, उसमें क्या जरूरत है। तो नीड है कि भाई बहुत भारी है, इसको कैरी करना है और इसका यूज बहुत मुश्किल जा रहा है। तो थर्ड नंबर पे क्या हुआ, आइडिया आया। आइडिया आया कि अच्छा इसमें मेरे को लाइट वेट मटेरियल यूज करना पड़ेगा, इसमें टच स्क्रीन लगा सकते हैं, इसमें ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये जब ब्रेनस्टॉर्म बोलते हैं उसको, सबसे पहले क्या किया, व्हाट इज अवेलेबल, तो मोबाइल अवेलेबल, आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम क्या है, तो उसको कैरी करना मुश्किल है, पॉकेट में रखना मुश्किल है, थोड़ा छोटा बनना चाहिए। तो फिर आइडिया आया, ब्रेनस्टॉर्म किया, बेस्ट सॉल्यूशन देने की बात, बेस्ट सॉल्यूशन जब देने की बात की, तो एक प्रॉपर आपने एक ड्राइंग इज द मीडियम टू एक्सप्रेस। तो आपने एक ड्राइंग बनाया कि मुझे इस टाइप का मोबाइल, इसमें ये चाहिए। वहां पे ड्राइंग आपकी काम आती है। आपको एमएफ हुसैन या पिकासो जैसी ड्राइंग आना जरूरी नहीं है, पर एक्सप्रेशन के लिए ड्राइंग आना जरूरी है। आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो, आप आपका आइडिया जो आया है ना ब्रेनस्टॉर्म करके, वो एक बताना चाहते हो, तो वो एक आइडिया आप बताओगे और वो सिलेक्ट हो जाएगा, वो कम्युनिकेट हो जाएगा। तो 5 स्टेप में आपकी एक डिजाइन पूरी होती है। तो ये डिजाइन कंसेप्ट है। होप समझ में आया होगा आप लोगों को कि 5 स्टेप में एक डिजाइन पूरी होती है, और ये चीज हर जगह पे लागू पड़ती है। यही चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, डिजाइन विल कंसिस्टेंटली बी इन डिमांड एज ए डिजाइन इज एवरीवेयर, डिजाइन लीड्स टू डिफरेंट करियर पाथ, इन डिसिप्लिनरी इसकी कॉपी नहीं की जा सकती है, आपकी थिंकिंग है, और एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, और साथ ही साथ ये भी बताया कि अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो तो इट पेज, बीइंग क्रिएटिव इट पेज। और क्या है वो भी हम बात करेंगे। तो स्कोप इन डिजाइन,
मिलेनियल्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स क्रिएटिव करियर्स। अभी जैसे कई बार क्या हो जाता है कि राइट टाइम पे, अभी तो हम राइट टाइम पे अगर 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट है उनका तो हो जाएगा, लेकिन अभी कई हाउस वाइफ है उनके लिए भी हम कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जो लोगों ने ये स्किल मिस कर दिया और आज उनको रिग्रेट होता है, वो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए बी करने के बाद या बीकॉम करने के बाद, बीएससी करने के बाद भी ये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में आ रहे हैं। तो क्यों ना आप शुरू से ही इसका ग्रेजुएशन, जैसे बीकॉम करते हैं या एमबीबीएस करते हैं या बीए करते हैं या बीएससी करते हैं, वैसे ही 4 साल का कोर्स होता है, उसके बाद 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन। तो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप बी डेज कर सकते हैं। एनआईडी स्टूडेंट बैक 72 lakhs पे पैकेज, 72 लाख रुपए का पे पैकेज लगा है। एनआईडी क्या है वो भी हमने बताएंगे। एनआईडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो कॉलेज है, निफ्ट जो है, एनआईएफटी, यहाँ का प्लेसमेंट 49,24,000 का है। फैशन नेक्स्ट कैन बी यू, ऑल यू नीड, अगर आप में वो एप्टीट्यूड है जो मैंने शुरू से बोला, तो ऑल यू नीड इज ड्राइंग, ऑब्जर्वेशन। ड्राइंग क्यों? क्योंकि आपको एक्सप्रेस करना है कि मुझे ये आइडिया है। ऑब्जर्वेशन स्किल होनी चाहिए कि अगर ये वाली कुर्सी डेंटिस्ट के यहाँ रखनी है तो डेंटिस्ट को वो चीज आप जब जाते हो तो ऑब्जर्व करो आसपास कि क्या क्या लगता है। हर जगह कहीं जाते हैं तो ऑब्जर्व करें कि क्या क्या लगता है। फिर इमेजिनेशन करना पड़ेगा आपको कि अच्छा वहां पे ऐसा था, यहाँ पे ये करना चाहिए, चेयर में ये वाला चाहिए, यहाँ ये चीजें है। और फिर जनरल एप्टीट्यूड कि भाई डॉक्टर है तो वो कैसे काम करता है, ये इंडिया है तो यहाँ की रोड कैसी है। तो ये सब चीजें जनरल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज। क्रिएटिविटी के लिए अभी तक क्या हो रहा था कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका अगर परसेंटेज अच्छा हो, मतलब 10th तक आते आते तो रातों रात लोगों की, स्टूडेंट्स की जिंदगी बदल, कोई हीरो और कोई जीरो। किसी को 90+% आ गए तो बोले वाह वाह हीरो, और अगर 50 से कम आ गए तो कुछ बात ही नहीं कर रहा है। तो ये तो गलत है ना। कहने का मतलब है कि सबका, किसी का एप्टीट्यूड पढ़ाई में है तो वो उस हिसाब से कर रहा है, किसी का क्रिएटिविटी में है तो वो क्रिएटिविटी में जाए। तो ऐसा जरूरी नहीं कि परसेंटेज, आज सचिन तेंदुलकर साहब जो यस ऑल ओके ना मैम, ऑल हाँ सर ओके, नहीं म्यूट हो गया था इसलिए। ओके, माय वॉइस इज क्लियर ना? क्लियर क्लियर। ओके, थैंक यू। तो ड्राइंग, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन स्किल और जनरल एप्टीट्यूड अगर आप में है तो यू कैन बिकम ए डिजाइनर, आर्किटेक्ट और एन आर्टिस्ट, क्योंकि सब में यही एक जो थिंकिंग पैटर्न है ना वो यही लगने वाला है। एनआईडी स्टूडेंट डिजाइन करी फेरारी गाड़ी इंडिया के लिए। आप समझें कि इंडिया के मार्केट में अगर गाड़ी चलानी है तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? तो आपको पता है कि इंडिया के रोड्स बम्स आ जाते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, तो थोड़ा जनरल नॉलेज है कि रोड्स ऐसी है तो इसमें सस्पेंशन बढ़ाना पड़ेगा, ग्राउंड क्लियरेंस देना पड़ेगा, ये सब जो बातें हैं ये जनरल नॉलेज के लिए है। तो जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, हल्का फुल्का आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए। डिजाइन के कोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमारे घर में मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, 4 फैमिली मेंबर्स होते हैं। मैंने इसे 4 पार्ट में डाला है। डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन जिसमें होता है प्रोडक्ट डिजाइन, फर्नीचर डिजाइन, सिरेमिक एंड ग्लास डिजाइन, ऑटोमोबाइल डिजाइन, टॉय एंड गेम डिजाइन, ये होता है इंडस्ट्रियल डिजाइन में। उसके बाद लाइफस्टाइल डिजाइन यानी कि फैशन से रिलेटेड, फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, नेटवेयर डिजाइन, लेदर डिजाइन, एक्सेसरीज डिजाइन, ज्वेलरी डिजाइन, अपरेल डिजाइन, ये हो गया है लाइफस्टाइल डिजाइन। इसके लिए एक अलग कॉलेज, इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए अलग कॉलेज, कम्युनिकेशन डिजाइन यानी कि ग्राफिक डिजाइन, एनिमेशन, फिल्म एंड वीडियो डिजाइन, फोटोग्राफी डिजाइन, एग्जीबिशन डिजाइन, रिटेल एंड एग्जीबिशन डिजाइन, ये सब आता है कम्युनिकेशन डिजाइन में। और एनवायरमेंटल डिजाइन में आता है आउटर यानी कि आर्किटेक्चर, सिविल कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिजाइन, प्लानिंग एंड अर्बन प्लानिंग, ये सब को रिलेटेड हैं। और देखिए कि ये जो नेक्स्ट स्लाइड मैंने की है, इससे और मैंने जो बातें बोली है वो आपके समझ में आएंगी कि when wheel was created to serve as a potter's wheels around 3500 BC in Mesopotamia। मेसोपोटामिया में जब 3500 साल BC साल पहले, यानी कि 6500 5100 BCE में जब व्हील बना था, तब तो कोई ऐसा नहीं, पर ये लोग भी डिजाइनर ही थे। आज वो व्हील बना है इसलिए आप जोमेटो पे ऑर्डर करते हो, उसी समय खाना आ जाता है, मिंत्रा या कहीं पे आप ऑर्डर करते हो वो चीजें आ जाती है। इसके बैकग्राउंड में व्हील है, वो व्हील जो ट्रांसपोर्टेशन इसी बनाया है। तो सबसे पहले तो क्या है कि नो डिजाइनर कैन क्लेम कि 100% उसकी क्रिएटिविटी है, क्योंकि वो क्या करता है, डिजाइनर ऑब्जर्व करता है और फिर उसका यूज करता है। तो अभी देखिए कि सन है,
ये सन तभी भी उनको दिख रहा था, आज भी मुझे दिख रहा है, तभी भी गोल था, आज भी गोल है। तब उन्होंने गोल ऐसा सोचा और इसीलिए वो सन से इंस्पायर्ड होके उन्होंने एक पॉटर्स व्हील डेवलप किया। ट्रायल एंड एरर में, ट्रायल एंड एरर हुआ होगा, तो वो सन गोल था, राउंड था, इसलिए उन्होंने ये राउंड बनाने की कोशिश की और राउंड बनाया और देखिए कि व्हील लगा के और एक कार्ड डेवलप की। तो ये एक जो है वो मैनमेड डिजाइन, इसको हम प्रोफेशनली अभी सीख रहे हैं, इसीलिए चेंजेस आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि तभी भी डिजाइन था, अभी भी क्या डिजाइनर है, अभी सालों पहले तो इंजीनियर ही डिजाइनर होते थे, पर अब जो डिजाइनर फील्ड आई है ना, इसीलिए आपको हर 2 महीने में एक पैटर्न चेंज मिलेगा, हर चीज नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि अब वो फ्रीक्वेंटली होने लग गया है, इसलिए क्योंकि अभी डिजाइनर्स आ गए हैं मार्केट में और वही डिजाइनर ही डिजाइन कर रहे हैं। देखिए इंस्पिरेशन मैंने बताया कि रोज है, अब ये रोज है तो गुलाब के फूल के जो पत्ते हैं उनका कलर है, उसका फॉल देखते हुए एक डिजाइनर ने एक बढ़िया सा ड्रेस बनाया। देखिए सेम रोज है, ऐसे ही बटरफ्लाई को देख के एक ड्रेस बनाया हुआ है। ये देखिए कि ये आपको लग रहा होगा, आ गया होगा आपको आंसर कि ये डिजाइनर ने क्या सोचा होगा ये नेकलेस बनाते हुए। तब ये सोचा होगा नेकलेस बनाते हुए कि ये पीकॉक के फेदर्स हैं, मोर पंख को देख के उन्होंने एक अट्रैक्टिव ज्वेलरी डिजाइन में आ गया है। तो पैटर्न वही है, ऑब्जर्व करना, एम्पैथाइज करना, क्या नीड है, क्या प्रॉब्लम है, और उसका आइडिया लगा के और उसमें ड्राइंग के माध्यम से एक्सप्रेस करना, और फिर वो फाइनल डिजाइन हो जाती है। बुर्ज अल अरब या आर्किटेक्चर का नमूना है, इसमें भी वही है कि वो शेख साहब को पसंद नहीं आती थी डिजाइन और वो फिर परेशान हो गए आर्किटेक्ट, लेटे हुए थे और उनको बोट ऐसी आती हुई थी कि ऑब्जर्व किया बोट ऐसी आ रही है और बुर्ज अल अरब का यहाँ पे दिखेगी, ये बन गया है। फिशरीज टेम्पल या लोटस टेम्पल, देखो इंस्पिरेशन ही है, ये हर जगह लागू यही है, हर जगह वही है। नेस्ट टेम्पल चाइना में, स्टेडियम में, पाम जुमरा दुबई में, आपने मूवीज में देखा होगा, गए भी होंगे। म्यूजिकल स्कूल चाइना में, मेजर डिवीजन इन डिजाइन, फाइन आर्ट्स, अप्लाइड आर्ट्स, आर्किटेक्चर। हमारा मोटो ये है कि हम आपको बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि ये देखिए कैसा होता है करियर इन डिजाइन। स्लाइड नहीं दिख रही है सर, हाँ? स्लाइड नहीं दिख रही है। नहीं फिर से करता हूं, नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है। अहमदाबाद ड्राइविंग वाला वो है, वो वीडियो ऑफ है। चलिए नेक्स्ट उसमें करता हूँ। ओके डिजाइन कोर्सेज, ये दिख रही है स्लाइड, प्रोडक्ट डिजाइन? नहीं नहीं दिख रही है, डिजाइन कोई भी नहीं दिखे। वो वाली जो आपने ऐड किया है ना, वो उसका वीडियो ही ऑफ है। नहीं ये स्लाइड दिख रही है क्या अभी? नहीं दिख रही है स्लाइड। ओके है मैडम, आपके उसमें कुछ प्रॉब्लम आया होगा। मुझे दिखाई दे रही है स्लाइड आपकी सर। ज्वेलरी Yes, sir. डिजाइनरी का टेक्सचर, नहीं माय कॉलीग इज, मेरे कॉलीग को तो दिख रहा है मैडम। ओके तो मेरे फोन में यहाँ से नहीं दिख रही है। ओके ओके कोई बात नहीं। ओके अब हम बात करेंगे डिजाइन कोर्सेज की। उसमें प्रोडक्ट डिजाइन, मैंने बताया कि कोई भी चीज जो एक कंसेप्ट है, डिजाइन एक कंसेप्ट है। तो आप अगर देखें कि मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया था, या पहले 1902 में फैन कैसा था, आज कैसा है और कल कैसा रहेगा। तो ये जो चीजें हैं ये आप चेंजेस ला सकते हैं, और आपको जितना, ये एकदम ऐसा फील्ड है कि आप कुछ इनोवेटिव लाओ और लोगों को मददगार हो तो वो उसका आप देखो कि कितना यूजफुल हो जाएगा। वो मैनकाइंड में डिजाइनर काम करते हैं। वो फुटवेयर से लगाकर, अगर किसी का कैसा फ्लैट फुट है तो वैसा डिजाइन बना देंगे, वैसा बनाएंगे, दिखने में तो अच्छा ही है पर कंफर्ट भी साथ ही साथ है। तो ये गैजेट्स में हर जगह पे एप्पल डिजाइन की हम बात कर रहे हैं, निटवेयर डिजाइन की हम बात कर रहे हैं,
हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन डिजाइन, जिसमें ग्राफिक्स, लोगो कम्युनिकेट कर रहे हैं। अभी यहाँ पी लिख के और क्रॉस कर दिया है, ये सब जगह। तो ये जो किसी डिजाइनर ने जब बनाया होगा, ये देखिए कि आप नो पार्किंग है, आपको पता लगता है कि नो स्मोकिंग है, नो पार्किंग है, स्कूल अहेड है, या जो कंपनीज के लोगो होते हैं, अभी BRDS का लोगो है, ये एक ब्रांड है, ये इंडिया के जितने 70-80 सेंटर्स हैं सब जगह पे यही लोगो देख के लोगों को पता लगता है कि अरे ये है। अभी देखो कोको कोला है, पेप्सी है, ये ब्रांड है। तो ये जो है ये कम्युनिकेशन डिजाइन है, ग्राफिक डिजाइन है। ज्वेलरी डिजाइन, मैंने पीकॉक वाला है, पीकॉक का एग्जांपल दिया था, मोर के पीछे। तो ऐसे ही एक, आपको ज्वेलर नहीं बनना है, लेकिन एक ज्वेलरी डिजाइन भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। आप तनिष्क के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं, क्यों ज्यादा लोग जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास डिजाइन हैं। लोग बोलते हैं कि उनके पास वेराइटी ऑफ डिजाइन है हर ऑकेजन के लिए। तो ये आप उसमें ज्वेलरी डिजाइन कर सकते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि डिजाइन के 40 कोर्सेज हैं, जैसे मैंने आपको सब बताया है। वो कोर्स आपको फिर बाद में आप चूज कर सकते हो कि कौन सा आपको कोर्स लेना है। तो टेक्सटाइल डिजाइन, आप देखिए कि आपके घर का जो 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 पर्दे और कर्टन्स जो भी है सब अलग है, दूसरे के अलग है, सबके हिसाब के आप एक्सप्लोर करो और एक नई डिजाइन बना सकते हो। उसमें ड्राइंग एक इंपॉर्टेंट रोल है कि एक्सप्रेस करना है आपको। लेदर डिजाइन, फैशन एंड कम्युनिकेशन डिजाइन, है ना। अब ये ऑटोमोबाइल डिजाइन, अब आपको लगेगा कि ऑटोमोबाइल डिजाइन में तो मुझे इंजीनियरिंग में जाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। अभी तो IIT यानी कि यूजीट के थ्रू IIT ने बोला कि भाई हमको भी पता है कि क्रिएटिव लोग परसेंटेज इतना नहीं है, तो इसलिए उन्होंने बोला IIT में भी आपको 50% पे 12th पास पे वो एक एग्जाम लेते हैं। ऑटोमोबाइल डिजाइन में पहले आपने देखा होगा कि मेरे दादाजी के वक्त में प्रीमियर पद्मिनी गाड़ी होती थी और वो एम्बेसडर गाड़ी होती थी, तो वही गाड़ी का इंजन दूसरे में लग जाता था, इंजीनियर ही डिजाइनर होते थे। अभी क्या हो गया है कि डिजाइनर डिजाइन करते हैं, तो आप ऑटोमोबाइल डिजाइन में जा सकते हो। ये जो सारी मैंने बातें बताई ना, तो आपका कोई भी स्ट्रीम हो, आपने आर्ट्स लिया हो, कॉमर्स लिया हो, साइंस लिया हो, कोई भी ग्रुप हो, आप ऑटोमोबाइल डिजाइन में जा सकते हो। और 12वीं पास चाहिए, कोई भी परसेंटेज हो तो 12वीं पास पे आप जा सकते हैं। मैं जो प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए भी थोड़ी सी बात करूंगा बाद में, पर अभी मैं ये स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ कि ऑटोमोबाइल डिजाइन एक बेहतरीन सेगमेंट है, कि जिसमें दिलीप छाबरिया साहब का आपने नाम सुना होगा। वर्ल्ड रिनाउंड कार डिजाइनर हैं, एरोडायनेमिक वे में गाड़ियां बनाते हैं हॉलीवुड बॉलीवुड के लिए। और देखिए ना आपने तो ये जो मूवीज में कार यूज होती हैं वो सब उनकी टीम वर्क करते हैं। तो इंडियन माइंड है ना, एक बहुत हुनर जुगाड़ू माइंड है। इसलिए हम बोलते हैं कि इंडिया के जो डिजाइनर्स होते हैं ना, वो वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड रिनाउंड हैं डिजाइनर। सिरेमिक एंड ग्लास डिजाइन, टॉय एंड गेम डिजाइन, गेम खेलना नहीं, गेम बनाने का। अभी है जो ग्राफिक डिजाइन में गुड मॉर्निंग व्हाट्सएप मैसेजेस करते हो, वो कोई बना रहा है और कमा रहा है, आप बस धन्यवाद आ जाता आदान प्रदान कर रहे हो। तो आप ये चीज सोचो कि यार ये गेम खेल रहा हूँ, ये गेम मैं अगर बनाऊं तो वो अरबों रुपया कमाते हैं। आप सोचने वाली बात है। ग्राफिक डिजाइन मैंने बताया कि ये सब लोगो है, हर जगह के लोगो, पेप्सी, बहुत। अब तो नई नई कंपनी स्टार्टअप आ रहे हैं, है ना। अभी देखो कोविड में जिन कंपनी के पास डिजाइनर नहीं थे ना, वो कंपनी बंद हो गई। और जिन कंपनीज के पास डिजाइनर थे हैं, वो कंपनी ने ऐसी ग्रोथ की। अभी मिंत्रा है, ये ऑनलाइन जो भी है ग्राफिक के थ्रू ही हो रहा है। अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, जूम की टेक्नोलॉजी है, वो भी ऑनलाइन है, तो इसमें सब ग्राफिक्स हैं। तो मिंत्रा है, या मिंत्रा जो मंगवाता है, वो जो आप मंगवाते हो वो सब डिजाइन है, उस पर डिजाइन, फैशन, सब कुछ मिला जुला है एक ही उसमें। तो ग्राफिक डिजाइन भी एक सेगमेंट है। फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन, बाहुबली मूवी देखी होगी। बाहुबली के एक छोटे से रूम के अंदर सब छोटे 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 मॉडल्स बनाए थे, और उन मॉडल्स को फिर उस हिसाब से मूवी बनी है। तो ये आप उसमें जा सकते हैं। एनिमेशन डिजाइन, अवतार मूवी, स्पाइडरमैन आप बच्चों ने देखा ही होगा। अवतार मूवी मतलब गिविंग लाइफ टू अ कैरेक्टर, किसी कैरेक्टर को लाइफ दे देना, मतलब ये है एक बहुत बड़ी बात है। एनिमेशन एनिमेटर होते हैं, नेक्स्ट टू गॉड कहलाए जाते हैं। लाइफस्टाइल एसेसरीज डिजाइन, चश्मे से लगाकर हर चीज, उस चश्मे का कवर हो, हर चीज वेराइटी आप बना सकते हो। लैपटॉप बैग से लगाकर सब कुछ लेदर डिजाइन में आता है। फर्नीचर एंड इंटीरियर डिजाइन, कोविड के बाद अभी क्या हो गया है कि लोगों का परसेप्शन चेंज हो गया। उनको लगा कि मेरे पास स्टडी रूम होना चाहिए, ऑफिस भी होना चाहिए, अगर घर में ही रहना है तो फर्नीचर। तो जो इन्वेस्टमेंट रेशो है, अगर 1 करोड़ का फ्लैट लिया है तो 30 लाख रुपीज तक वो 30-40 लाख इंटीरियर में खर्चा करते हैं। तो इसमें भी अच्छा स्कोप है। NIT, NAPE, IIT, UC, टॉप डिजाइन कॉलेजेस एंड देयर एंट्रेंस एग्जाम पेपर पैटर्न। हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन,
डिजाइन कोर्सेज होते हैं एनआईडी में, बैचलर ऑफ डिजाइन 4 साल का कोर्स होगा, और वो एनआईडी अहमदाबाद, विजयवाड़ा, कुरुक्षेत्र, भोपाल और जोरहाट में है। इसके एग्जाम में मटेरियल हैंडलिंग यानी कि हुनर बेस्ड, यानी कि आप चीज मिट्टी में खेले हो या मिट्टी के गणपति बना रहे हो, अभी दिवाली आएगी, कोई कंदील बनाएगा, लैंटर्न बनाएगा, कोई दिए बनाएगा, कोई सजाएगा, कोई झालर लगाएगा, अरे ये भी तो आप में डिजाइनर क्वालिटी है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अच्छा ये जगह है, ओके, फिर सोचोगे कि यार यहाँ पे कुछ खाली लग रहा है तो क्या करूं, बस सोचना है, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, ये सारी चीजें आप करने ही वाले हो दिवाली में। अभी देखिए बच्चे दिए बना रहे हैं, तो ये सब एक कंसेप्ट है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो 425 सीट्स है और उसमें ही बीआरडीएस के ही लोग सिलेक्ट होते हैं मैडम, ये बहुत बड़ी बात है, मैं आगे बताऊंगा आपको रिजल्ट्स। तो इसमें 2 सेगमेंट में एग्जाम होती है एनआईटी की, डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड मतलब वही नेचुरल टैलेंट, इसीलिए मैंने बोला कि आपका वो नेचुरल एबिलिटी पहचानो, आप में वो एप्टीट्यूड है क्या। तो डिजाइन की एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं जिसमें वो जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर वो जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उसमें से, वो बच्चों का एक होता है मेन एग्जाम, डीएटी मेंस जिसको बोलते हैं, और उसका सारा वेटेज उसी का ही रहता है। मतलब वो 30% तो इसलिए कि बहुत सारे, अगर जो कि 20,000 लोगों ने दिया है एग्जाम और उनको 5,000 लेने हैं, तो फिर वो 425 के लिए 4,000 लोगों का एक एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद में डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट मेंस में स्टूडियो टेस्ट जिसको बोलते हैं, या सिचुएशन टेस्ट, मटेरियल हैंडलिंग होता है। मतलब आपको कुछ मटेरियल दे दिया, एक लकड़ी दी, दोरा दे दिया, धागा यानी कि दोरा, धागा, लकड़ी दी, कुछ और मटेरियल दे दिया, और उसको बोला कि इससे कुछ साइंटिफिक बनाओ, आप कपड़ा दिया तो आप शायद साइंटिफिक विंड मिल बना दो, बोट बनाओ, या कुछ भी जो भी आपका जैसा आइडिया है, क्योंकि ये तो आइडिया कॉपी भी नहीं कर सकते, है ना। तो जब गॉड ने कॉपी नहीं किया तो आप क्यों, आप इंस्पायर्ड हो सकते हो, आप आइडिया ले सकते हो क्रिएशन से। तो ये चीज, आप दिवाली आएगी कोई, ये सब आप बनाओगे, तो यही सब चीजें जो है वो वहां पे प्रैक्टिकली देखते हैं, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेने का, वहां देखते हैं और पूछते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा है, और फिर बस उस हिसाब से फिर आपका सिलेक्शन होता है। सेम वही पैटर्न है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। अभी अगर ये मिंत्रा बाजू में ही मेरे ऑफिस है, मेरे ऑफिस के, तो इतना भीड़, इतना इतना सब चल रहा है, तो मेरे को समझ में आया कि ये लेटेस्ट डिजाइन्स रहती हैं उनके पास। तो आप ऑनलाइन भी देखें, सब में डिजाइनर्स का काम है उनका, तो ऑनलाइन आप उनके ऐप पे जाते हैं, मैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ कि फैशन एसेसरीज डिजाइन, फैशन कम्युनिकेशन कहाँ हो रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे सब आपको मिलता है, और बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, हैदराबाद, भुवनेश्वर, जोधपुर, कुन्नूर, भुवनेश्वर, कलकत्ता, मुंबई, पटना, रायबरेली, शिलोंग, श्रीनगर, ये सब जगह पे अवेलेबल है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, यहाँ अहमदाबाद में, गांधीनगर में। इसमें भी सेम बी डिजाइन होता है, उसमें क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट होती है, 50% उसका जनरल एबिलिटी की भाई किस हिसाब का है, क्या है, तो जनरल नॉलेज, जनरल एबिलिटी, और सिचुएशन टेस्ट होता है जिसमें आपको कुछ बनाने के लिए दिया जाता है। लेकिन आप सिचुएशन टेस्ट पर ध्यान दें, और आईआईटी है, यूसीट के थ्रू आप आईआईटी में भी जा सकते हैं। वहाँ पे 5 साल का, 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है इंडस्ट्रियल डिजाइन और कम्युनिकेशन डिजाइन। प्लेसमेंट्स की हम बात करें तो जितनी भी कंपनीज हैं उन सबको डिजाइनर्स की जरूरत है। यहाँ पे स्लाइड्स कम पड़ जाएंगे, विप्रो, एडिडास, तोशिबा, नोकिया, ओरेकल, पाथवेज, रेनॉल्ट, रेडबस, ये सब जो हैं, तनिष्क, सबके पास एक डिजाइनर की जरूरत है, और डिजाइनर को ले लेते हैं। आपका प्लेसमेंट 3rd ईयर में आते आते सबका प्लेसमेंट हो जाता है, 70% लोगों का, बाकी लोग 4th ईयर में 100% प्लेसमेंट है। आर्किटेक्चर भी एक है जिसमें आप बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हो, इसके अंदर थोड़ा पीसीएम जरूरी है मैथ्स में, और 12th में परसेंटेज जरूरी है। हम ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन देखिए कैसा है ये लोगों के मैनकाइंड में। हमारे ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने बनाया दिल्ली का एयरपोर्ट, मुंबई का एयरपोर्ट, आप गए होंगे, देखा होगा, है ना। आर्किटेक्चर कोर्सेज, अर्बन डिजाइन एंड टाउन प्लानिंग की, साणंद के वहां कोई जगह ले ली है, या पोरबंदर के बाजू, वो पूरा उसको एक पूरा डेवलप करना। गवर्नमेंट इज प्लानिंग 100 स्मार्ट सिटीज एवरी ईयर, मोदी जी आने के बाद से, लेकिन वो अभी कोविड में थोड़ा सा रुक गया। लेकिन आप सोचे कि एक ही जगह हो जहां मॉल हो, जहां स्कूल हो, जहां कॉलेज हो, जहां हॉस्पिटल हो, जहां सभी फैसिलिटीज अवेलेबल हो, और एक ऐसी जगह की जहां जैसे गोदरेज ग्रीन गार्डन या अडानी हमारे यहाँ बना हुआ है, तो वैसा पैटर्न अभी आएगा, और आ ही गया है, तो उसमें भी प्लानिंग करना होता है। ग्रीन आर्किटेक्चर, देखिए आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइन,
एग्जीबिशन डिजाइन, जगह जगह आप एग्जीबिशन देखने जाते होंगे, उसमें डिजाइनर्स की जरूरत लगती है। लैंडस्केप डिजाइन, बराबर, कि आप वो कहीं खड़े हैं, लैंडस्केप देख के और फिर बनाने का ड्राइंग। कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन, जैसे ताजमहल या यहाँ अहमदाबाद में झूलता, अरे पोरबंदर में तो मैं आया हूँ, कितनी सारी जगह हैं कि जहाँ पुराना हेरिटेज है, तो वो वहां पे कि कब है क्या है, उसको खराब ना हो, रिस्टोरेशन बोलते हैं उसको, वापस से उसको करना। तो ये सब जो है, ये इसमें एक सेगमेंट है। आर्किटेक्चर एग्जाम में नाटा का एग्जाम होता है मेनली, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। सैलरी हम बात करेंगे कि शुरुआती सैलरी मतलब 5-10 लाख का तो सैलरी इजीली लगता है, जो भी डिजाइनर बनता है और अच्छी कंपनी में लगता है। बीआरडीएस के बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हर साल हमारा हाईएस्ट सिलेक्शन रिकॉर्ड होता है। कोर्स कंटेंट हमारे देखिए कि बेसिक्स से एडवांस तक हम सिखाते हैं, बिल्कुल डूडलिंग वर्क से लगाकर सब, डूडल फंडामेंटल्स ऑफ ड्राइंग्स, ये सब आपको सिखाया जाता है। ऑब्जेक्ट ड्राइंग, पर्सपेक्टिव ड्राइंग, प्लान एंड एलिवेशन, लाइट एंड शेडो, है ना, एक इंजन मैडम को तो सब पता होगा। तो ये सब चीजें हैं जो हम यहाँ सिखाते हैं। एक्सप्लोर कलर मीडियम, अलग अलग कलर मीडियम को लेके 3D ड्राइंग। हमारे यहाँ जो फैकल्टी होते हैं, जो वो बच्चों को पढ़ाते होते हैं, तो वो देखने का नजारा ऐसा होता है कि एक गाड़ी उन्होंने बनाई ब्लैक बोर्ड पे, फिर ऐसा लगता है थोड़ी देर बाद कि वो गाड़ी बोर्ड में से बाहर आ रही है। तो कहने का मतलब ये कि यह आर्ट देख के एकदम अचंभित होने वाली बात है कि वही एक 2D पे 3D बना देने की चीज है। तो ये 3D ड्राइंग, कैरेक्टर डिजाइन, ये सब आपको सीखने मिलता है। स्टोरी ब्रांडिंग, और ये सब सीख के मजा आता है। जिस चीज में मजा आए और वो आगे ही करियर बनाना है, तो क्यों नहीं सक्सेस होने वाली। सोचने वाली बात है ना कि आपको सूद ही भूल जाओगे, आपको याद ही नहीं कि खाना खाया, और काम में इतना व्यस्त हो, तो उस आदमी को कौन सक्सेस से रोक सकता है? कोई भी नहीं। गॉड भी उसका साथ ही देने वाला है, क्योंकि एप्टीट्यूड है ना, अंदर से गॉड गिफ्टेड चीज है। ह्यूमन एनाटॉमी, लाइव स्केचिंग, एक्सप्लोर करना है आपको। किताबों के साथ मतना नहीं है कि इंजीनियरिंग जैसा, मैं किसी डिसिप्लिन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कई कॉलेजेस बंद हो जाते हैं क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है। ये डिमांड में है, और कॉमर्स के जो बच्चे हैं उनको पता है कि ये ना डिमांड जब बढ़ती है, अभी जब डिमांड में कोई चीज, प्याज यानी कि डूंगली अगर महंगी हो जाती है, तो क्यों महंगी हो जाती है? क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और सप्लाई कम है। और अभी वही हो रहा है कि अभी डिजाइनर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, हर कंपनी को चाहिए, और उसकी सप्लाई कम है। तो सप्लाई कम है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, हायर सैलरी पे काम चल रहा है, और आपको सेटिस्फेक्शन होता है एंड ऑफ द डे, यार मैंने ये चीज की और देखी कि कितना सक्सेसफुल हुआ है। पर्सपेक्टिव ड्राइंग, ये सब आपको, ये है फेज 2 प्रिपरेशन जो मैंने बताया। तो ये खेल खेल में आपको कैसा मजा आए, क्राफ्ट वर्क है, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं कागज से, इससे, ये सब देखिए टीम वर्क है। बाद में ये कई लोग तो जो है ना जॉब ही रिफ्यूज कर देते हैं, और 2 या 3 जने आपस में मिलके एक कंपनी खोलते हैं, और वो कंपनी फिर इस टाइप से चलने लगती है, करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन होने लगता है। आप गूगल करना कभी डिजाइनर्स के बारे में, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, पर ये इतना ऐसा है कि जो चीज में आपको मजा आ रहा है ना, ये देखिए ना, ये कि दिवाली में आप ऐसा ये सब चीजें करें, और आगे बढ़ने ही वाली है चीज। पोर्टफोलियो रिव्यू एंड मॉक टेस्ट इंटरव्यूज होते हैं, ये सब है। और बीआरडीएस स्टडी मटेरियल होता है, हम एग्जीबिशंस भी अरेंज करते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ये सब तो हमने बात की। ऑनलाइन लर्निंग है, ऑनलाइन प्रैक्टिस है, हमारे हाईएस्ट सिलेक्शन है बीआरडीएस के, गारंटी देते हैं कि एडमिशन हो जाएगा अगर हमारे यहाँ। 100% सिलेक्शन की गारंटी है, एज लिस्टेड इन डिजाइन मैगजीन। ज्यादा प्रमोशन नहीं है, मेरे को इतना ही बताना है कि वी आर द नंबर 1, क्योंकि डॉक्टर भंवर राठौर खुद निफ्ट आईआईटी एल्यूमिनाई है, और सिर्फ डिजाइनिंग का ही हम सिखा रहे हैं। पिछले 17 सालों से लीडिंग हम ही है, हमारी देखा देखी बाकी लोग आए, पर हम ही सिखा रहे हैं, इसलिए पायोनियर और नंबर 1 प्रीमियर इंस्टीट्यूट इसीलिए बोल रहे हैं। तो हमने दूसरे हमको देख के डिजाइनिंग में आए हैं, चाहे वो कॉमर्स पढ़ा रहे थे या आर्ट्स पढ़ा रहे थे, कुछ और पढ़ा रहे या इंजीनियरिंग का, और लेकिन हमने तो सिर्फ यही रखा है, और यही हमारा जीवन का मोटो है। आज हम किंजल मैडम ने हमको बोला, तो हम आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि डिजाइन क्या होता है, और उसमें आप अगर करें तो अभी भी देर नहीं हुई। ये तो मैंने स्टूडेंट्स के लिए आपको बात बताई, फिर मैं आगे और बताता हूँ बात। हमको हाईएस्ट नंबर्स ऑफ अवार्ड मिलते रहते हैं हर बार, अभी भी मिला, कबीर वेदी आके गए और उन्होंने दिया अवार्ड।
ये है CSR एक्टिविटी करते हैं, फैकल्टीज जो हैं वो यहाँ के एल्यूमिनाइज है। हमारा क्या है कि यहीं जो पढ़ाने वाले फैकल्टीज हैं NID, NIFT, IIT के या SEPT के, वो हमारे यहाँ कोचिंग देते हैं। आपको स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। अभी तो ऑनलाइन लर्निंग है, इजीली आपको और हाई टेक इक्विपमेंट्स के साथ फैकल्टीज आपको पढ़ाते हैं, तो ऑनलाइन लर्निंग एक्सेस मिलेगा और वीडियोस मिलेंगे। फ्लेक्सिबल बैचेस है, अगर फिजिकल आना है तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलेगा। ये हमारा हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो है। टाइम्स अवार्ड्स मिले हुए हैं सारे, ये अभी अवार्ड्स लेटेस्ट ही है हमारे। और ये हमारी टीम है आर्किटेक्ट, डिजाइनर और फाइन आर्टिस्ट की यहाँ। तो ये जो है आपको हम बताने की कोशिश की है कि देखिए कि रिजल्ट्स भी नाम नंबर के साथ हम नंबर नहीं, नाम और फोटोग्राफ्स के साथ हम बताते हैं, न्यूज़पेपर में देते हैं, फुल डिटेल्स है। अब डिजाइन एग्जीबिशन देखिए, हम ये जो स्कोप दे रहे हैं ना आपको, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हो और आपको एक एग्जीबिशन यहाँ है HO है अहमदाबाद में, आपको यहाँ पे एग्जीबिशन में टॉप मोस्ट सभी जगह के लोग आते हैं हमारे यहाँ और देखिए कि ये एग्जीबिशन कैसी है। आपका काम इसमें रिफ्लेक्ट कराएंगे, शो होगा। फिर अगर आपको मैंने जैसे शुरू में बोला था कि एप्टीट्यूड जो नेचुरल टैलेंट है, अगर आपको लगता है कि मेरे में वो एप्टीट्यूड है नहीं है, पता नहीं लग पा रहा है, तो आप प्रोफेशनल एप्टीट्यूड फ्री है आपके लिए, क्योंकि किंजल मैडम ने हमको अप्रोच किया और मेहर काउंसिल के लिए हम ये टोटली फ्री रखेंगे। तो आपको 90 मिनट्स का डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट हम फ्री देंगे, डेमो देख लीजिए, आप काउंसलिंग करवा लीजिए। और अगर ऐसा है तो और भी जानकारी चाहिए तो rathordesign.com पे या brdsindia.com पे आप जाइए, देखिए और भी इंफॉर्मेशन लीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेसफुल करियर। सी यू एट BRDS फॉर फर्दर गाइडेंस। मैं एक बार फिर से नाम और नंबर मेरा बोलता हूँ। मेरा नाम है निरंजन प्रधान, करियर कंसल्टेंट हूँ। मोबाइल नंबर है मेरा 9327057221, आप ये नोट करें। इसके अलावा किंजल बहन जो हैं उनका भी आप नंबर नोट कर लीजिए, 8866205491, 8866205491। किंजल मैम है, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार देखिए डिजाइन के कंसेप्ट के बारे में देखिए। ड्राइंग एंड आर्ट जो है उसका एग्जीबिशन भी हमारा होता है, वो भी वीडियो अभी क्योंकि टाइम बाउंड हो गया है तो अब मैं अपना प्रेजेंटेशन जो है वो यहीं स्टॉप करूंगा। फिर से द इंटरनेशनल मेयर सुप्रीम काउंसिल को थैंक्स देना चाहूंगा और होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और अब मैं चाहूंगा कि अगर आपके कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चंस जिसका आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे ये पूछना चाहिए, तो पूछना ही चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं आंसर दूं। अदरवाइज आप किंजल मैडम से कांटेक्ट करके हमारे यहाँ ऑफिस में आइए, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ करते हैं, तो जरूर टच में रहिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर करियर। जो प्रोफेशनल जो हाउसवाइफ तो ये हैं उनके लिए भी हमारे पास ऐसे कोर्सेज हैं कि जो 3 मंथ्स 6 मंथ्स 2 इयर्स 1 ईयर ऐसे कोर्सेज हम कराते हैं कि अगर आपको लगता है कि मुझे फैशन जाना था, फैशन का मेरे पास वो हुनर है, एप्टीट्यूड तो सेम है, अभी पता लगा कि मेरा ये एप्टीट्यूड पेपर मुझे करना था, तो आप हम आपको फैशन डिजाइनिंग के सारे कोर्सेज, टेलरिंग, ये वो सारी जो चीजें हैं वो सिखाते हैं प्रोफेशनली। और फिर आपको हम गाइडेंस भी देते हैं, जॉब के लिए भी आगे हम गाइड करते हैं। तो ये सब हमारे पास फैसिलिटी है। तो प्रोफेशनल्स के लिए भी, बच्चों के लिए ड्राइंग एंड आर्ट हमारी क्लासेस चलती हैं। तो
तो ये सब है और हम चाहेंगे कि इसका एडवांटेज लें। अभी मैडम ने इतना आप लोगों के लिए किया है, तो देखिए बेस्ट, मैं तो इतना ही चाहूंगा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। सो थैंक यू वेरी मच। किसी के कोई सवाल हो तो वो पूछें। ओवर टू यू किंजल मैडम, थैंक यू वेरी मच। કોઈને કઈ પૂછવાનું છે? પૂછી શકો છો. કોઈને કઈ હશે પૂછવાનું નથી, કઈ ક્વેશ્ચન નથી, એટલું બધું સમજાઈ ગયું બધાને? ઓકે, નિરંજન સરે તમને બહુ જ સરસ મજાનું સમજાવ્યું, પણ હું તમને એઝ અ ગુજરાતીમાં સમજાવવા માંગુ છું કે તમારે તમારું નામ ચમકાવવું હોય તો એક ગાડરિયો પ્રવાહ જે આપણે કહીએ છીએ કે ઘણી વખત એવું બને કે જેમ કે મારા પપ્પા ડોક્ટર છે કે મારા પપ્પા એન્જિનિયર છે કે મારા પપ્પા એક શિક્ષક છે કે કોઈ પણ, તો દરેક મા બાપનું પણ એવું પણ કહેવામાં હોય કે હું જે ફિલ્ડમાં છું એ ફિલ્ડમાં મારું છોકરું જાય. પણ અહીંયાથી હું એક પેરેન્ટ્સને એવું કહીશ અને સ્ટુડન્ટને એવું કહીશ કે તમારા છોકરાને જે ફિલ્ડમાં જવું છે એ ફિલ્ડમાં જવા દેશો તો તમારું છોકરું તમારી સાથે સાથે તમારા પરિવારનું, તમારા ગામનું અને તમારી જ્ઞાતિનું નામ ખાલી તમારા ગામ પૂરતું જ નહીં પણ આખા ગુજરાતથી લઈને આખા ઇન્ડિયામાં ચમકાવશે. તો દરેક વ્યક્તિ પોતાનું જે એક ધ્યેય છે કે મારા આ ધ્યેયમાં જવું છે, તો હજી પણ કઈ મોડું નથી થયું. અને હું આ ફિલ્ડમાં છું એટલે હું આ નથી કહેતી, પણ તમે કોઈ પણ ફિલ્ડમાં જાઓ, જ્યાં જે પણ ફિલ્ડમાં જશો એ ફિલ્ડમાં તમે જે બુક્સ ઉપર તમને જે પર્સન્ટેજ છે એ ક્યાંય પણ માયને નહીં રાખે. તમારું જે પ્રેક્ટિકલ વર્ક છે એના ઉપરથી જ તમારું આખું કરિયર ડિસાઇડ થશે, એના ઉપરથી જ તમે આગળ શું કરશો એ ડિસાઇડ થશે. એટલે મારું એટલું જ કહેવાનું છે જેટલા પણ અહીંયા જોડાયેલા છે અને જે પણ આ પ્રોગ્રામ ઓનલાઈન પણ જોઈ રહ્યા છે એ લોકોને, કે તમારું સપનું સાકાર કરવું જ છે તો તમને જે ગમે છે એ જ કરો, પણ આજુબાજુ વાળા શું કહે છે એમાં ધ્યાન ન આપો. તમે તમારું ધ્યેય જેમાં જવું છે એમાં જ ફોકસ કરો. આગળ હું એટલું કહીશ કે થેન્ક યુ સો મચ વિમલ અંકલ કે જેને મને આ એક તક આપી અને બને ત્યાં સુધી મેં ટ્રાય કરી છે કે હું આ ફિલ્ડમાં આવી છું તો આ ફિલ્ડમાં આવનાર દરેક વ્યક્તિને હું મારાથી બને એટલી હેલ્પ કરું. મને જ્યાં નથી સમજ પડતી ત્યાં નિરંજન સરથી લઈને જે આગળ સુધીના છે એ બધાની હેલ્પ લઈને આ કરિયરની અંદર આપણી કાસ્ટના દરેક સ્ટુડન્ટને હું મારાથી પણ આગળ મોકલી શકું. થેન્ક યુ સો મચ. IMC. Thank you. I think it was a fantastic by Niranjan भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आपने आके जो हमारा जो जूम मीटिंग के अंदर, वेबिनार के अंदर, आई होप के मैक्सिमम would have tried to get the benefit. At the same time, I think from the Facebook there may be number of other people may would join as well, जिसकी वजह से आगे Facebook पे अगर रखेंगे तो recording भी हो रहा है. And as a president of IMSA, I'm so pleased that this is have organized and जितने भी ज़्यादा स्टूडेंट है उसका फायदा उठाए. फेसबुक के ऊपर से भी शायद उठाएंगे, इसे मैं भी आशा रखता हूँ. With that, over to Mehul bhai and Kinjal. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ કિંજલ બેન. થેન્ક યુ નિરંજન સર. ખૂબ સરસ સેમિનાર રહ્યો. ઘણી વખત ઘણા વિદ્યાર્થીઓને ખ્યાલ નથી હોતો કે તેમને કયા ફિલ્ડમાં જવું છે. અમને આ વિશે પ્રોપર માર્ગદર્શન કે પ્રોપર ગાઈડન્સ હોતું નથી. તો આજનું આ જે ડિઝાઇનિંગનું અને આર્કિટેક્ચરનું જે કંઈ પણ જ્ઞાન આપણે મળ્યું એ ખૂબ જ સરસમાં જ્ઞાન મળ્યું છે અને મને ખાતરી છે કે આમનાથી ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓએ પોતાનું ભવિષ્યના કેરિયર માટે કંઈક વિચાર્યું હશે. ખાસ એક બાબત એ પણ છે કે જે જોડાયેલા ભાઈઓ બહેનો છે એમાંથી કોઈને પ્રશ્ન નથી એ થોડુંક મને તાજુબ થાય છે. હજુ પણ આપણી પાસે સમય છે. નિરંજન સર આપણી સાથે છે. અહીં આપણે પ્રશ્ન પૂછી શકીએ છીએ અને આપણે એનું પાસેથી ગાઈડન્સ મેળવી શકીએ છીએ. જો આપ પ્રશ્ન પૂછવામાં કંઈ પણ ગભરાટ અનુભવતા હોય તો આપ મને આમાં મેસેજ પણ કરી શકો છો ઝૂમ એપ્લિકેશનની અંદરમાં. તો તમારા વતી પણ હું પ્રશ્ન પૂછી શકીશ. તો હું તમને ટાઈમ આપું છું, તમે પ્રશ્ન પૂછો. કંઈ પણ ટોપિક કે કંઈ પણ મુદ્દો ન સમજાણો હોય તો ફરી પાછું એક વખત આપણે રિપીટેશન લઈ લેશું સર પાસેથી. તો પ્રશ્ન પૂછો કોઈ આપણે. હેલો સર. Yes. યસ
આશાબેન. સર ફાઇન આર્ટ્સમાં શું કરિયર હોય? फाइन आर्ट्स तो बेस्ट करियर है, आर्टिस्ट बनोगे आप, और फाइन आर्ट्स इटसेल्फ एक करियर बनेगा उसमें। तो खाली ड्राइंग टीचर तक सीमित नहीं है, आप उसमें आप आपका आगे आके एक बार आप किंजल मैडम से मिलके हमारे एक सेंटर पे अगर आएंगे तो आपको पता लगेगा कि फाइन आर्टिस्ट की क्या क्या करियर हो सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम फैकल्टी आप और क्या कर सकते हैं। तो वो आपको यहाँ आके ही पता लग पाएगा कि आप और आगे क्या कर सकते हैं। He's already a fine art student at Baroda, Asa Keswala. I am not wrong, Asa? યસ સર યુ આર રાઈટ. She is from Baroda. He is from Porbandar, but study at the present study at the Baroda Fine Arts. MS यूनिवर्सिटी. अच्छा, she has already studied. तो Yes, sir. अगर Yes, उनको sir. डिजाइनिंग में, अब देखिए यही हो गया ना कि अभी ऑलरेडी उन्होंने एक फाइन आर्टिस्ट बन गए, तो अभी वो यही देख रहे होंगे कि कहीं फैकल्टी बने ये वो। लेकिन हमारा क्या है कि डिजाइनर बनना है तो एक अलग एक सेगमेंट है, तो उसके लिए क्योंकि इनके पास वो एप्टीट्यूड तो है, ये तो कंफर्म हुआ। लेकिन अगर और आगे बढ़ना है, क्योंकि और आगे बढ़ना है तो फिर आपको फिर और आगे यहाँ आके और देखना पड़ेगा कि आप उसमें क्या क्या कर सकते हो, मतलब आप प्रोफेशनल कोर्स करके और कैसे आपको आगे कर सकते हैं, तो वो उसमें आपको आना पड़ेगा। ઓકે સર, थैंक यू। થેન્ક યુ સર. आशा, और कोई भी स्टूडेंट हो जो पूछना चाहते हो इस बारे में तो पूछ सकते हो। बाद में भी सर व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, मैडम से पूछ सकते हैं, अभी हेजिटेशन भी होता है, बाद में सोचते हैं। कई बार क्या होता है कि कथा होने के बाद फिर घर जाके याद आता है कि अरे वो बाबा ने ये बोला था, और वो मैं बाबा नहीं हूं पर मतलब वो ये ऐसा हो जाता है कि वहां कोई सत्संग वैसी बात हो जाती है। थॉट आएगा तो पूछेंगे, हम आंसर देंगे। मैं ये सोच रहा था कि लोहा गर्म है तो थोड़ा मार दे तो शायद। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी वो क्या है कि थोड़ा ठंडक भी आ गई है ना, अभी थोड़ा वातावरण भी ठंडा हो गया है, तो ठीक है सर, अच्छा है, आपका प्रयास भी बहुत अच्छा है और इतना मोटिवेट कर रहे हैं और आगे आना चाहिए। और क्योंकि मुझे पता है कि ये फील्ड ऐसी है ना सर कि इसमें ही बहुत आगे स्कोप है, और खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए करना है। खुद का तो एक सेटिस्फेक्शन है, पर पब्लिक के लिए मैंने वो बताया है कि एम्फेसाइज करके जो लोग आज रिवर फ्रंट बन गया है तो वो रिवर फ्रंट है, या जो भी चीजें बन रही हैं अभी हम मेट्रो बन रहा है या कुछ भी है, वो मैनकाइंड के लिए है ना सर। तो ये नया नया यही तो कंसेप्ट है। तो हम तो थैंकफुल हैं कि आप कर रहे हैं, तो आगे भी हम जुड़े रहेंगे सर आपसे, काउंसिल से। Definitely, sir. Sure. Kinjal Ben, over to you. एंड करें? हाँ, Over to you. હવે તો કઈ ક્વેશ્ચન છે નહીં કોઈને, તો મેહુલભાઈ આ પ્રોગ્રામ અહીંયા આપણે પૂરો કરી શકીએ છીએ. તમને કઈ કેવું હોય તો? સંસ્થા વતી શ્રી ઇન્ટરનેશનલ મેર સુપ્રીમ કાઉન્સિલ વતી નિરંજન સરનો હું અત્રે ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એમને પોતાનો બીજી શેડ્યુલમાંથી ટાઈમ કાઢી અને જ્ઞાતિના વિદ્યાર્થીઓના બેટર એજ્યુકેશન કેરિયર ઓપ્શન માટે માર્ગદર્શન આપ્યું બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર સર. થેન્ક યુ વેરી મચ નિરંજન સર. અને જરૂર પડશે ત્યારે ભવિષ્યમાં તમારો અને કિંજલબેનનો ફરી પાછો લાભ લેશું, એની અંદર મને હેરાન કરશું એવી અપેક્ષા સર આજની આપણે મીટિંગ છે એ પૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ ફ્રોમ ઇન્ટરનેશનલ મેર સુપ્રીમ કાઉન્સિલ. થેન્ક યુ. ચાલો, ઓકે ઓકે ચલો, ઓકે ઓકે બાય, આવજો. બાય.